Welcome back, students. This is maths class of ninth, and today we will start exercise 1.5, class 9th, and the exercise 1.5. Okay, according to the first question, classify following rational or irrational numbers. Classify following rational or irrational numbers. Classify following rational or irrational numbers, and in this question we have 5 questions. First is 2 minus under root 5. Second is 3 plus root 23 minus under root 23. Third is 2 under root 7 upon 7 under root 7. Fourth, 1 upon under root 2. Fifth, 2 pi. We have, students, we have 5 questions. We have 5 part of the question number first. In first के जो ना 5 part है, and the question is classify following rational number, following rational और irrational numbers. यानी आपको ये बताना है कि कौन से इसमें rational होंगे और कौन से नंबर irrational होंगे. So students, first of all I would like to talk about question number first. According to first question, we have 2 minus under root 5. So students, 2 is a rational number. 2 क्या है? Rational number. 2 is a rational number, and you know that under root 5 it is a irrational number. Under root 5 क्या है? Irrational number. Always remember rational minus irrational. हमेशा याद रखना रेशनल माइनस इरेशनल. जहां पे प्लस में या माइनस में या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कहीं पे भी अगर इरेशनल नंबर आ रहा है, इफ इन एनी एक्सप्रेशन यू हैव इरेशनल नंबर, तो वो जो टोटल जो नंबर है वो हमेशा क्या होगा? आपका इरेशनल होगा. यानी कि 2 रेशनल है बट अंडर रूट 5 क्या है? इरेशनल है. तो ये जो नंबर है ये सेल्फ कंप्लीट नंबर, इट विल बी इरेशनल. दिस नंबर विल बी इरेशनल. तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है? इरेशनल लिखना है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू अबव क्वेश्चन दिस इज इरेशनल, और ये भी क्या है? आपका इरेशनल नंबर. ओके, बट वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन. अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे और सोल्व कर सकते हैं. 3 plus under root 23 minus under root 23. Here under root 23 is positive, and here under root 23 is negative. So we can cancel under root 23 and minus under root 23. So we will get 3. And students, you know that 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 these are rational number. तो यहाँ पे जो ये कौन सा नंबर आ गया अपने पास? Rational number. This is a rational number. So rational, the rational number. Next is 2 under root 7 upon 7 under root 7.
Next question number third is 2 under root 7 upon 7 under root 7. Here students, you can see that under root 7 is irrational number, and again under root 7 it is also an irrational number. Both are irrational, but we can solve this number. अपन इस नंबर को आगे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं. Here you can see that under root 7 से under root 7 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है. We can cancel under root 7 and under root 7. So final answer we will get 2 upon 7. And you know this is a P upon Q form, so it is a rational number. Next question number 4, 1 upon under root 2. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है. अंडर रूट 2 कैसा है अपना, इरेशनल नंबर. अब इरेशनल आ गया ना साथ में. अब क्या आप मेरे को एक बात बताओ, कैन यू डू यू एबल टू कट या कैंसिल अंडर रूट 2? क्या आप अंडर रूट 2 को किसी से कैंसिल कर सकते हो क्या? ऊपर कहीं न्यूमरेटर में अंडर रूट 2 आपको दिखाई दे रहा है. देयर इज नॉट एनी अंडर रूट 2 एनी मोर अंडर रूट 2, सो वी कांट कैंसिल अंडर रूट 2. यानी कि ये इरेशनल नंबर आप आगे आपका सॉल्व नहीं हो सकता. वी कांट सोल्व दिस नंबर. सो दिस नंबर विल बी इरेशनल. यानी इसका आंसर जो है वो आपको क्या लिखना है, इरेशनल. अंडर रूट 2 इरेशनल है तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 भी क्या होगा आपका, इरेशनल ही होगा. एंड फिफ्थ यू कैन सी दैट 2 पाई. अब मेरे को एक बात बताओ, 2 पाई के बारे में अपन बात करते हैं. पाई क्या है आपका, इरेशनल नंबर. 2 पाई में ये जो पाई है ये क्या है आपका, इरेशनल नंबर. दिस इज इरेशनल. तो कंप्लीट जो 2 पाई है वो भी क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा. दैट विल बी आल्सो इरेशनल नंबर. So students, that was the first question. Now we will move on second question. Next question second, simplify. First question is 3 plus under root 2, 2 plus under root 2. Second is 3 plus under root 3, 3 minus under root 3. Root 5 plus under root 2 का whole square. And fourth is under root 5 minus under root 2 and root 5 plus under root 2. Okay student, we have simplify यानी अपने को सभी को सिंप्लीफाई करना है. दैट मीन्स अपने को केवल सोल्व करना है. इनको सोल्व करने के बाद में अपने को पता चलेगा कि कैसे इसको सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, 3 plus under root 2 and 2 plus under root 2. Here you are given 3 plus under root 2 and 2 plus under root 2. Here you can see that we have two numbers, first and second, and both are given in multiplication. Here is automatic multiplication. तो आपको मैंने मेथड बताया था कि आपको 1 by 1 क्या करना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है. जैसे 3 का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 2 के साथ. 3 into 2. आफ्टर देन यू विल मल्टीप्लाई 3 को रूट 2 के साथ.
तो 3 अंडर रूट 3 इंटू रूट 2, फिर अंडर रूट 2 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, एंड आफ्टर देन वी विल मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2। तो आपको 1 बाई 1 सबके साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है। 1 बाई 1 आप सबके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट नंबर का आगे वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लीकेशन, एंड आफ्टर देन सेकेंड नंबर का भी आगे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सेकेंड नंबर का भी अपने को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। सो 3 टू जा 6, it will be 3 under root 2, and here you can see it is 2, so it will be 2 under root 2। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2। जब अपन दो सेम अंडर रूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट विल बी कैंसिल, एंड वी विल राइट सेम नंबर। जैसे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो आई विल राइट ओनली 2। अब अगर ऐसे मान लो रूट 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 आए, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, सो यू विल राइट 3, यानी रूट 3 और रूट 3 से करोगे तो भी क्या लिखना है, आपको 3 लिखना है। सो हियर यू कैन सी दैट 6 and 2 इट विल बी 8 प्लस, अब देखो अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 सेम है, तो देखो रूट 2 के आगे 3 है, यहाँ पे अंडर रूट 2 के आगे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 कितने हैं, 3 अंडर रूट 2 है। यहाँ पे जो वी हैव 3 अंडर रूट 2 एंड एट हियर वी हैव 2 अंडर रूट 2, तो टोटल अंडर रूट 2 कितने हो जाएंगे, 3 and 2 5। तो अपने पास क्या आ गया, 5 अंडर रूट 2 आ गया। और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपके पास 3 अंडर रूट 2 है और प्लस में है 2 अंडर रूट 2, तो यू कैन सी दैट अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 बोथ आर सेम, सो यू कैन टेक कॉमन। अंडर रूट 2 आप इसमें से कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3। यहाँ से आपका कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, एंड 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, जिसको आप लिख सकते हो 5 अंडर रूट। यू कैन सोल्व लाइक दिस, इस तरीके से भी आप है ना अलग से इन योर ऑफ नोटबुक यू कैन फर्स्ट सोल्व एंड आफ्टर देन यू कैन राइट द आंसर। उसके बाद आप ना आंसर लिख सकते हो। Okay, next is this one, second. Next is 3 plus under root 3 and 3 minus under root 3. 3 plus under root 3 and 3 minus under root 3. This is the question. Here you can use identity. आपको मैंने इस तरीके की एक आइडेंटिटी बताई थी। I already told you a minus b, a plus b, a minus b, a plus b is equal to a square minus b square. Here you remember this one कि a और a, b and b both will be equal, both will be same, यानी कि फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो ए बी है वो ही आपका सेकंड ब्रैकेट में होना चाहिए, और एक में प्लस हो सकता है और दूसरे में क्या होना चाहिए, माइनस हो सकता है। अब ये माइनस पहले हो प्लस बाद में हो, चाहे प्लस पहले हो माइनस बाद में हो, आइडेंटिटी बेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। देयर इज नॉट इफेक्ट ऑन दिस आइडेंटिटी। So here we have a minus b, a plus b, and it is equal to a square minus b square. In the given question, the value of a is 3 and the value of b is under root 3. Here we have the value of a is equal to 3 and the value of b is equal to under root 3. So I will apply a minus b. Here you can see it is here a minus b and a plus b, a plus b, and the answer will be a square minus b square. So I will write here 3 का square minus b, b क्या आपका √3, सॉरी
3 स्क्वायर 9 माइनस एज इट इज √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड इट विल बी इक्वल टू 3 एंड 9 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 6. That was the second question of this exercise of this question, second part. Okay students, now we will do next √5 plus √2, √5 plus √2 का होल स्क्वायर, ये अपने को सोल्व करना है. √5 plus √2 का होल स्क्वायर. √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपन एक वी हैव आल्सो एन आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर. ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है. a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. Here you can see that this is same. a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5, and the value of b it will be √2. So a की जो वैल्यू स्टूडेंट वो भी √5 और b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास √2, and we can apply this identity. So a square a means √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, √5, and the value of b √2 plus b square, what is the value of b, √2, so that will be √2 का square. Okay students, now √5 का square, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, एंड हियर वी विल गेट 5 प्लस 2 इंटू √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल इफ टू स्क्वायर रूट वैल्यूज आर डिफरेंट. अगर आपके रूट में कोई 2 वैल्यूज है और वो दोनों वैल्यूज अगर आपके डिफरेंट है, सो यू कैन अप्लाई मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइडेशन, ओनली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड. या अपन उन दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो अपन मल्टीप्लीकेशन है वो अपन डायरेक्टली कर सकते हैं. जैसे √5 इंटू √2 है, तो आप इसका डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो उसको. आपको मैंने एक रूल बताया था इस तरीके से कि √ab को अपन क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √b. ये अपन √ab को अपन इस तरीके से राइट कर सकते हैं, √ab इज इक्वल टू √a इंटू √b. वो सेम चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे. अब जैसे मान लो अगर √a इंटू √b दे रखा हो, तो आप इसको वापस इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, √a इंटू b. वो सेम चीज यहाँ √5 इंटू √2 है, तो आई विल राइट √5 इंटू 2 प्लस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड हियर आई विल गेट 2. 5 एंड 2 इट विल बी 7 प्लस 2 इंटू √5 इंटू 2, 5 2 जा 10. So final answer I am getting final answer 2 7 plus √2 √10. This is the result of question number 3rd. Now students we will do next, and next question students आपको self करना है. This is same as it is a प्लस बी a माइनस बी, हियर इज a माइनस बी a प्लस बी. आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. You will use this identity in this question also, and you will do this question self. This is your homework. Okay, now we will move on question number 3rd.
Recall pi is defined as the ratio of the circumference say C of a circle to its diameter. Circle to its diameter, say D. That is pi is equal to C upon 8. This means to contradict This means to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? This is the question. According to the question, recall pi is defined as the ratio of the circumference say C and of a circle its diameter say D. देखो स्टूडेंट, इस लहंगा में आपको मीन जो है वो इस तरीके से आपको पता है व्हाट इज दिस, यू नो दैट दिस इज ए सर्किल, यानी ये क्या एक सर्किल होता है. दिस इज द सपोज सेंटर ऑफ द सर्किल एंड दिस इज रेडियस r and this is also radius r and r कितनी हो जाएगी 2r. तो सर्किल का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होता है 2r के. अच्छा, ये जो होते हैं ना, ये दिस वन, दिस इज द सर्कमफेरेंस जिसको अपन ने किससे डिनोट किया है c से. दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल और इसका जो फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस का वो होता है c इज इक्वल टू 2 पाई r. This is the formula to find the circumference of any circle. सर्किल का circumference find करने का formula c is equal to 2 pi r. Now what? pi की वैल्यू देखो क्या आएगी. 2 and r both are in multiplication. They can move on below the c. Here you will get only pi. 2r किसके इक्वल है d के, तो c अपॉन d इक्वल टू पाई. तो यही है ना क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो. देखो c और d का क्या है रेशियो है. पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से c, सर्कमफेरेंस को c बोल दिया हमने, ऑफ ए सर्किल एंड टू इट्स डायमीटर, नीचे d से d, डायमीटर को हमने क्या मान रखा d, ये रेशियो होता है पाई, यानी दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी. ये क्वेश्चन में भी दे रखा है और अपन ने इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी. दिस मींस टू कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जैसे कि मैं कहता हूं कि 5 रेशनल नंबर है, आपको भी पता है 5 क्या है रेशनल नंबर है, लेकिन अगर किसी फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि पाई ना इरेशनल हो सकता है, तो यानी ये क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. यानी कि जो हम इतने दिन से मानते हुए आ रहे हैं कि भाई ये एक रेशनल है और अचानक से अपने सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है कि यार जिससे ये लग रहा है कि ये तो रेशनल नहीं है, दिस इज द इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो गया उसका उल्टा हो गया. तो इस चीज को अपन बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन. वी विल से इट कॉन्ट्राडिक्शन.
दिस मीन्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, यानी कि ये ना कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। देखो पाई किसके इक्वल है, सी अपॉन डी, है ना। इस फॉर्मूले से पता चल रहा है पाई किसके इक्वल हो गया, सी अपॉन डी के इक्वल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाई को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर अपन ने पाई को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा तो ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। हमने तो ये पढ़ा था कि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। बट यू कैन सी इट हियर कि पाई क्या आ रहा है अपना, रेशनल आ रहा है। तो यानी कि हमने पढ़ा था कि पाई इज इरेशनल नंबर, बट नाउ यू कैन सी वी कैन सी दैट पाई इज रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजोल्व करोगे, कैसे आप वापस प्रूव करोगे कि पाई आपका रेशनल नहीं है। आपको प्रूफ करना है पाई क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन अपना। सो स्टूडेंट हाउ विल यू डू दिस, किस तरीके से आप इसका रिजोल्व करोगे, कैसे करेंगे अपन कि भाई पाई, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो देखो पाई इज इक्वल टू आ रहा है सी अपॉन डी, यानी कि पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म है तो इसका मतलब पाई क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट अपन पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि पाई रेशनल नहीं होता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी कि ऑपोजिट होने लग गया। तो इसमें आपको ये बताना है कि पाई की वैल्यू जैसे ही आप सी अपॉन डी, ये राइट है कि पाई को आप सी अपॉन डी की फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन जैसे आप स्केल वगैरह किसी भी मेथड से सी को मेजर करोगे, सर्क्यूमफेरेंस को मेजर करोगे और स्केल की हेल्प से आप डी को मेजर करोगे, तो वो आपकी कभी भी एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती, उसमें थोड़ी बहुत एरर आती है। यानी कि पाई की ये जो वैल्यू है ना सी अपॉन डी, सी को आप जब मेजर करोगे, व्हेन यू मेजर सी, व्हेन यू मेजर डी, जैसे आप डी को मेजर कर रहे हो, सी को मेजर कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे, स्केल वगैरह से करोगे, और वो वैल्यू आपकी एक्यूरेट कभी नहीं आती है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई की जो वैल्यू है ना सी अपॉन डी, दिस इज द अप्रोक्सीमेट इक्वल टू सी अपॉन डी। ये कंप्लीट इक्वल नहीं आएगा, सी अपॉन डी में आपकी मिस्टेक होती है। अपन है ना एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं नाप सकते अपन। तो हम क्या कहेंगे कि पाई है ना वो सी अपॉन डी के एकदम इक्वल नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल। पाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू सी अपॉन डी। पाई जो है वो अपना अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा सी अपॉन डी के लिए। अब ये तो चलो समझने वाली बात हुई, लेकिन अपने उसको नोटबुक में आंसर कैसे लिखना है, चलो वो अपन और थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए सर्किल वगैरह ड्रॉ किया है, नोटबुक में क्या करना है वो अपन देख लेते हैं। In fair notebook you will write the answer like this. With a scale, स्केल समझ गए ना आप लोग, जो स्केल से अपन लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं। With a scale we get only an approximate rational number, यानी कि अपने पास जब स्केल से कोई भी कुछ ड्रॉ करते हैं तो अपने पास कभी भी परफेक्ट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू कभी नहीं आती। That will be always a एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने पास आती है। एज द रिजल्ट ऑफ और मेजरमेंट दैट इज वाई पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज ए क्वोशिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स। यानी कि जब अपन है ना, आपको बताया था मैंने, इसमें दिया रखा है सी पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। जब आप स्केल लोगे और सी को मेजर करोगे, डी को मेजर करोगे, दैट विल बी नॉट एक्यूरेट वैल्यू, वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पाई है ना वो आपकी सी अपॉन डी के एकदम एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। एग्जैक्ट इक्वल नहीं है जिसका मतलब पाई को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर पाई इज इरेशनल नंबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो यहाँ पे
पाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू सी अपॉन डी। इस तरीके से आप लिख देना, पाई जो है आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, सी अपॉन डी के। ये जो टू लाइंस है ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल है। पाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी कि पाई जो है वो आपका सी अपॉन डी के एक्यूरेट इक्वल नहीं होगा। सो पाई इज नॉट रेशनल, पाई इज इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is represent under root 9.3 on a number line. In this question we have to represent under root 9.3, यानी under root 9.3 को अपने को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कि नंबर लाइन पे ये कहाँ होगा, under root 9.3। So first of all you will draw a line of 9.3, यानी under root के अंदर जो भी अपने को नंबर दे रखा है, जैसे 9.3 दे रखा है, तो आपको 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करनी है आपके जो फेयर नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से आपको 9.3 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। सपोज ये जो लाइन है ये कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर। दिस इज द लाइन एंड नेम दिस लाइन, सपोज दिस इज AB। इस लाइन को अपन ने क्या नाम दे दिया, AB। पहला फर्स्ट काम आपका यही होना चाहिए कि जो भी अंडर रूट के अंदर आपको जैसे कुछ भी दे रखा हो, आपको ना जितना अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर दे रखा है उतनी आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल, यानी स्केल की हेल्प से। आफ्टर ड्रॉइंग दिस लाइन वी विल टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अपन सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पहले अब जितनी आपने 9.3 लाइन आपने ड्रॉ कर दी ना, इसके बाद में आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन इस बीच जो पॉइंट है ना इसके आगे राइट हैंड साइड में आपको 1 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और ड्रॉ कर लेना। जैसे मान लो ये आ गया, ये यहां से लेके यहां तक ये कितना है आपका 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये पॉइंट A हो गया, B हो गया, तो इसको अपन क्या नाम दे देंगे, पॉइंट C। तो ये हो गया 9.3 और इसके आगे क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। तो बताओ मुझे टोटल हाउ मच लॉन्ग दिस लाइन, तो दिस विल बी 10.3 कि 9.3 तो ऑलरेडी है और 1 सेंटीमीटर आपने आगे और इंक्रीज कर दिया, तो ये लाइन कितनी होगी अपनी 10.3 हो गई। आफ्टर डूइंग दिस यू विल टेक ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतना करने के बाद में आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना है, ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका लोगे, AC का लोगे, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई थिंक यू नो हाउ कैन वी टेक ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर नहीं पता है तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यू विल टेक ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास शायद सबके घर पे होगा। कंपास में आपको पेंसिल आपको इनपुट करनी है, उसमें पेंसिल डालनी है और कंपास की जो नीडल होती है, कंपास की जो सुई होती है, जैसे कि आपने इसको A पर रखा और उसको हाफ से ज्यादा, यानी यहाँ पे रखने के बाद में उसको हाफ से ज्यादा ओपन कर लेना और ओपन करने के बाद में एक तो आपको आर्क ऊपर लगाना है और दूसरा आर्क नीचे लगाना है। A पे रख के इस तरीके से A पे रख के आपको एक आर्क ऊपर लगाओगे और एक आर्क नीचे लगाओगे। अच्छा, इतना करने के बाद में आप है ना उतना ही उसको ओपन करके रखना और फिर C पर रख के और एक आर्क वापस ऊपर और एक आर्क वापस नीचे लगाना है इस साइड से ऐसे, तो एक नीचे हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से आपको ना 2 आर्क लेने और इन दोनों आर्क को आप ज्वाइन कर सकते हो।
इस तरीके से आप ज्वाइन कर देना, कोई दिक्कत नहीं। स्केल से आप ज्वाइन कर देना है इन दोनों पॉइंट्स को, जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को काटेंगे, जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो अपना एक पॉइंट होगा और दोनों पॉइंट्स को आपस में आपको मीट करवाना है, मिलाना है। आफ्टर डूइंग दिस, अब आपको क्या करना है, आपको एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। यू विल ड्रॉ ए सेमी सर्किल। सेमी सर्किल कैसे ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट को अपन नाम दे दिया O। अब वापस आपको कंपास जो है, कंपास की जो सुई है, नीडल है, वो आपको यहाँ रखोगे और उसको यहाँ पे रख के और सी तक, बी तक नहीं, सी तक ओपन करना है। ऐसे यहाँ पर रखा और उसको ऐसे सी तक ओपन करना है और सी तक ओपन करके आपको ऐसे एक सर्किल बनाना है। और ये क्या आएगा, आपका एक सेमी सर्किल आएगा। ये क्या हो जाएगा, एक सेमी सर्किल। तो आपको एक सेमी सर्किल आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, आफ्टर डूइंग दिस, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे आपने इतना काम कर लिया, इसके बाद में एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद में जहां पे आपका पॉइंट बी है, वहां से आप है ना डी की हेल्प से एक परपेंडिकुलर लोगे विद द हेल्प ऑफ डी, और ये एक 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी 90, यानी बी पर है ना, आपको बी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है और इसको यहाँ तक ऊपर जहां तक आपका सेमी सर्किल है वहां तक ड्रॉ करना है। और इसको अपन ने नाम दे दिया, मान लो पॉइंट क्या है, ये पी है। अब आपको वापस वही काम करना है, कंपास लेना है, उसकी नीडल यहाँ रखनी है और इसको पी तक ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में इस तरीके से एक आर्क काट देना, एक आर्क लगाना है लाइक दिस वन। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक आर्क लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ये वाली जो लाइन आएगी ना BC, बस ये पॉइंट, ये आपकी √9.3 के इक्वल होगी। ये जो लाइन आएगी दैट विल बी इक्वल टू √9.3, ये आपके √9.3 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद में आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट यू विल डू सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेल्फ सोल्व करना है और उसके बाद में दिस एक्सरसाइज ओवर, और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।